Good morning, students. Welcome to the online classes of RRB Group of Schools. Today, we shall learn the summary of your next chapter, and the chapter's name is Should Wizard Hit Mommy? It is written by John Updike. So, before starting the summary, we should know what is the meaning of wizard. In other words, the meaning of wizard is magician. So, the title should be, as you can understand, Should Magician Hit Mommy? In this chapter, the writer presents the innocent feeling of a newborn child, or you can say, in this chapter, the writer presents the innocent feeling of a child towards the world. In fact, there is a great difference between the perspective of young ones and adults. छोटे बच्चों और बड़े लोगों के पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा ही अंतर देखने को मिलता है. क्यों? Young ones are free to think anything on any given topic, but young ones are overladen with the burden of duty and responsibility. छोटे बच्चे किसी भी टॉपिक को सोचने के लिए पूरी तरह से फ्री होते हैं, जबकि बड़े लोगों के कंधे पर जो है वो जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का क्या होता है बेटा, बोझ लगा हुआ होता है. So after reading the story, a question arises more frequently, and the question has been asked several times in CBSE paper. CBSE के पेपर्स में क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है, शुड विजार्ड हिट मॉमी चैप्टर को पढ़ने के बाद what moral does the story arises, या what moral issue does the story arise. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद वो कौन सा मॉरल इश्यू है जिसको ये स्टोरी रिप्रेजेंट करती है. तो द मॉरल इश्यू दैट द स्टोरी अराइजेज इज, शुड पेरेंट्स always decide what the children should do, or let the children do what they like to do. So this is the moral issue that the story arises. Should parents always decide what the children should do, or let the children do what they like to do? So there are some characters in this story. First of them is Jack. Second one is Claire. Third and the most important figure of the story is Joe. And fourth one is Bobby. So the story starts like this. Jack and Claire are the parents of Joe, who is a beautiful daughter of Jack and Claire. Joe is now of 4 and Bobby is now of 2. कहानी में 4 पात्र हैं बेटा, Jack, Claire, Joe, Bobby. Jack is the father of Joe, Claire is the mother of Joe, and Bobby is the brother of Joe. The full name of Joe was John. So what was the issue? Jack and Claire had already 2 children, as I have written their names, Joe and Bobby, and the third one was about to come. So, on every Saturday afternoon and on every Sunday, there was a responsibility on the shoulders of Jack that he had to tell a story to his daughter Joe for taking a short nap. हर शनिवार की दोपहर को और हर संडे को जैक के ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि वो अपनी लड़की जो को एक कहानी सुनाएगा ताकि वो दोपहर में थोड़ी देर तक सो सके. This process had been started when Joe was only 2 years old, and now Joe is of 4. ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हुई थी बेटा? जब से जो की उम्र 2 साल की थी, और अब उसकी उम्र कितने साल की है? 4 साल की. So the problem is with Jack that his mind is completely out of stories. Jack के साथ अब प्रॉब्लम क्या है कि उसके दिमाग में कोई भी कहानी बची नहीं है जो को सुनाने के लिए. And whenever Jack told a story to his daughter Joe, he always mentioned a common name, and the name was Roser. It may be Roser fish, Roser squirrel, Roser chipmunk. So on that day, Jack asked his daughter Joe
तो व्हाट अबाउट द स्टोरी शुड बी? उस दिन जैक ने अपनी लड़की जो से ये पूछा कि आज की कहानी किसके बारे में होगी, तो जो clenched her eyes and mentioned the name of Roser with a particular species of animal, and the particular species was skunk. So in other words, Joe wanted that on that day she will hear the story about Roser skunk. When Jack heard a new kind of species of animal skunk, he thought that these things would be conserved in her nursery school. जब उसने एक नई स्पीसीज का नाम सुना तो उसके दिमाग में आया कि ऐसी बातें वो नर्सरी स्कूल में ही सीखती होगी. And after finding a new kind of species, the zeal of Jack stayed for a moment. एक नए तरह के स्पीसीज का नाम पाकर जो उत्साह था, जो जोश था जैक का, वो थोड़ी देर के लिए जग जाता है. And he starts the story in this way. Jack started the story by saying that once upon a time, in the deep dark woods of a forest, there lived a tiny creature named Roser skunk, who smelled very bad. He smelled so bad that the other tiny creatures of the forest did not like to play with him. Roser skunk नाम का एक छोटा सा जानवर किसी घने जंगल में रहता था और उससे इतनी ज्यादा स्टिंकी स्मेल आती थी कि जंगल के जो दूसरे छोटे जानवर थे वो उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे. And whenever Roser skunk tried to play with them, all of them ran away. जब कभी भी रोजर skunk उनके साथ खेलने की कोशिश करता था तो वो सभी क्या करते थे, वहां से भाग जाते थे. Hearing it, Joe gave a serious expression on her face, and Jack liked it. इतना सुनने पर जो के फेस पर काफी गंभीर भाव दिखाई देते हैं, जो जैक को बहुत अच्छा लगता है. क्यों? While telling the story, Jack was also recalling the embarrassment and insults of his childhood. इस कहानी को सुनाते समय जैक को भी अपना बचपन याद आ रहा था जब उसको इंसल्ट और एम्बैरेसमेंट को फेस करना पड़ा था. And that was the reason he was in no hurry to end the story. He wanted to draw the story in his own way. वो कहानी को इसलिए जल्दी नहीं खत्म करना चाहता था, बल्कि कहानी को अपने अकॉर्डिंग वो लेकर चलना चाहता था. So the story moved. Roser skunk was very unhappy when he saw that the other tiny creatures used to run away from there by calling that, "Oh, stinky smell has arrived here. Let's go from here." जब छोटे जानवर ये कहकर चिल्लाते थे और भाग जाते थे, अरे वो बदबूदार रोजर स्कंक आ गया, चलो यहाँ से भाग चलते थे. And the Roser skunk used to be alone there, and 2 little drops of tears used to fall from his eyes. जब सभी छोटे जानवर वहां से भाग जाते थे तो रोजर स्कंक इतना ज्यादा दुखी हो जाता था कि उसकी छोटी छोटी आंखों से मोती जैसे 2 आंसू क्या होते थे बेटा, गिर जाते थे. To solve his problem, Roser skunk went to an wise old owl who used to live on the tip top of a huge tree. अपनी समस्या को लेकर रोजर स्कंक एक बूढ़े और बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है जो एक बड़े से पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठता था. Where he told his problem to the wise old enormous owl. और उसने क्या कहा बेटा रोजर स्कंक ने उस वाइज ओल्ड इनॉर्मस आउल से? I smell so bad. I smell so bad that all the other teeny creatures of the forest do not like to play with me. यानी इतना ज्यादा मुझसे बैड स्मेल आती है कि जंगल के जो छोटे दूसरे जानवर हैं वो मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करते. So what was the replication of the wise old owl? The replication of the wise old owl was that, so you do. It means indeed you smell so bad, and if you want to get rid of from your problem, you should meet the wizard. वाइज ओल्ड आउल ने उसे क्या सजेस्ट किया बेटा? वाइज ओल्ड आउल ने उसे सजेस्ट किया कि हाँ ये बात तो सच है कि सच में तुमसे बहुत गंदी स्मेल आती है. एंड इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम योर प्रॉब्लम, अगर तुम्हें अपनी समस्या से छुटकारा पाना है, इफ यू वॉश योर हैंड्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, अगर तुम अपना पल्ला झाड़ना चाहते हो इस समस्या से, तो यू शुड मीट द विजार्ड, तो तुम्हें उस जादूगर से मिलना चाहिए. रोजर स्कंक आस्क्ड अवे. रोजर स्कंक ने उससे रास्ता पूछा. एंड देन द वाइज ओल्ड आउल सजेस्टेड हिम द वे
under the apple trees, cross the swamp, over the creek. So what is the meaning of creek? The meaning of creek is a short river. वाइज ओल्ड आउल ने रोजर स्कंक ने कहा कि इन सेब के पेड़ों से नीचे से होकर जाओ, दलदल को पार करो और उस छोटी नदी के दूसरी ओर तुम क्या कर सकते हो, विजार्ड से मिल सकते हो. एंड रोजर स्कंक फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शन. रोजर स्कंक ने उस वाइज ओल्ड आउल के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया. एंड आफ्टर क्रॉसिंग द शॉर्ट रिवर ही सॉ अ ब्यूटीफुल वाइट स्मॉल हाउस वेयर ही नॉक्ड द डोर. एंड एन ओल्ड मैन विथ लॉन्ग बियर्ड एंड अ ब्लू कैप्ड हैट opened the door and asked what the watcher want. जब रोजर स्कंक ने उस छोटी सी नदी को पार किया तो उसे एक सुंदर सा छोटा सफेद मकान दिखाई पड़ा, और जहां पर उसने क्या किया, डोर को नॉक किया. एक बूढ़े झुके हुए व्यक्ति ने, जिसकी लंबी सी दाढ़ी थी और नीले रंग का वो टोपी पहना हुआ था, उसने दरवाजे को ओपन किया और उसने पूछा कि व्हाट डज द वॉचर वांट, कि आया हुआ व्यक्ति क्या चाहता है. रोजर स्कंक told the wizard that the wise old enormous owl suggested that there is only one person in this world who may solve my problem. रोजर स्कंक ने कहा विजार्ड से कि इस पूरी धरती पर केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और वो आप हैं. तो प्लीज चेंज माई स्टिंकी स्मेल इनटू द स्मेल ऑफ रोजेस. इसलिए आप क्या कीजिए, आप मेरी इस स्टिंकी स्मेल को चेंज कर दीजिए. विजार्ड ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, I will change your stinky smell, but which smell do you prefer? लेकिन तुम्हें कौन सी स्मेल प्रीफर है? तो आफ्टर लिसनिंग द क्वेश्चन, रोजर स्कंक डिजायर्ड द स्मेल ऑफ रोजेस, एंड दैट वाज द पर्टिकुलर रीजन द विजार्ड चेंज्ड हिज स्टिंकी स्मेल इनटू द स्मेल ऑफ रोजेस. यही एक रीजन था बेटा, जिसकी वजह से विजार्ड ने क्या किया, रोजर स्कंक की जो स्टिंकी स्मेल थी उसे स्मेल ऑफ रोजेस में कन्वर्ट कर दिया. And as a charge, he demanded 7 pennies, but there was another tragedy. As a charge, यानी फीस के रूप में उसने कितनी पेनीज मांगी बेटा, 7. But Roger Skunk had only 4 pennies. लगभग हर कहानी में ऐसा ही होता था, विजार्ड इतनी पेनीज की डिमांड करता था एज अ चार्ज, जो कहानी के हीरो रोजर के पास नहीं होती थी. और वो क्या करता था, वो एक पर्टिकुलर प्लेस को सजेस्ट करता था और उसके कुछ सर्टेन राउंड्स लेने के लिए कहता था, और मैजिक वेल में पीप इन करने के लिए कहता था बेटा. So that process also applied on Roger Skunk. When Roger Skunk replied that he had only 4 pennies, so the wizard suggested that don't be panic. There is no need to be panic. Wizard ने कहा तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है. Go through the lane and take 3 rounds and then peep into the magic well where you get your extra pennies. विजार्ड ने कहा रोजर स्कंक से, कोई बात नहीं, सड़क के उस पार जाओ, 3 चक्कर लगाओ, उस जादुई कुएं में झांक कर देखना, जितनी भी पेनीज तुम्हें कम पड़ रही है उतनी तुम्हें पेनीज वहां पर मिल जाएंगी. तो रोजर स्कंक डिड द सेम. रोजर स्कंक ने यही किया, उसने 3 राउंड्स लगाए, मैजिक वेल में उसने झांका और वहां पर उसे 3 पेनीज मिली. एंड ही गेव द पेनीज टू द विजार्ड एंड रिटर्न हैप्पीली टू द फॉरेस्ट, वेयर ऑल द टेनी क्रीचर्स ऑफ द फॉरेस्ट बिकेम एस्टाउंडेड. Because he was no more stinky Roger Skunk, he was smelling into the like the smell of roses. अब वो स्टिंकी स्मेल नहीं रह गया था, और जंगल के दूसरे छोटे जानवर उसे देखकर बहुत ताज्जुब में पड़ गए कि अरे इससे तो गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है. एंड ऑल ऑफ दे प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स आफ्टरनून. दोपहर भर वो सभी लोग क्या किए, रोजर स्कंक के साथ खेलते रहे. और जब शाम हुई, when it was getting dark, all of them ran towards their mommy. वो सब के सब अपनी मम्मी के पास भाग गए. और इतना सुनने के बाद जो realized that the story has come to an end, but Jack wanted to proceed the story in his own way. जो को ऐसा लगा कि स्टोरी अब खत्म हो गई, लेकिन जैक स्टोरी को अपने अकॉर्डिंग लेकर चलना चाहता था. एंड अ क्यूरियस एपिसोड कम इन द स्टोरी. एक क्यूरियस एपिसोड आता है बेटा इस कहानी में. When Roger Skunk knocked his own door, जब रोजर स्कंक ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया, his mother opened the door by saying, "Then what is that awful smell?" ये गंदी सी स्मेल कौन सी आ रही है, रोजर स्कंक की माँ ने पूछा. And Roger Skunk told all the story to his mother. After listening the whole story, his mother became very furious, and taking her child with him, she straight went to the house of the wizard, where he punished and scolded the wizard for changing the smell of Roger Skunk.
रोजर स्कंद ने जब पूरी बात अपनी माँ को बताई और रीजन बताया कि उसने स्मेल क्यों चेंज कराई है, ये सुनकर रोजर स्कंद की माँ जो है वो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर सीधे उस विजार्ड के घर पर जाती है, जहां पर वो उसे डांटती है और उसके सिर पर चोट भी करती है। एंड मेड द विजार्ड टू चेंज द स्मेल ऑफ रोजर स्कंक इनटू नेचुरल स्मेल, और वो फोर्स करती है विजार्ड को कि रोजर स्कंक की नेचुरल स्मेल थी उसी को वो फिर से वापस लौटा दे, और विजार्ड ने ऐसा ही किया। एंड इन दैट वे जैक फिनिश्ड द स्टोरी, बट जो वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। She wanted that the wizard should also hit the mummy for her rudeness, for her silliness. जो का ये मानना था कि वो मम्मी उसकी जो थी रोजर स्कंक की, वो बहुत ही बेवकूफ थी, क्योंकि जो विजार्ड ने अगर उसकी स्मेल को चेंज किया था तो इसमें विजार्ड की कोई गलती नहीं थी। ऐसा उसने किया था रोजर स्कंक की रिक्वेस्ट पर, और अगर रोजर स्कंक की मदर ने विजार्ड के सिर पर हिट किया है तो विजार्ड को भी एज अ रेप्लिकेशन रोजर स्कंक की माँ को पीटना चाहिए। एंड शी वॉज insisted to her father that on the very next day he would tell her a story in which the wizard hit the roser skunk's mother. जो इसलिए जोर दे रही थी अपने पापा जैक से कि अगले दिन आप मुझे ऐसी कहानी सुनाइएगा जिसमें ये आप बताइए कि विजार्ड ने भी रोजर स्कंक की माँ के सिर पर चोट की है, ठीक है, एज अ रेप्लिकेशन जवाब में। बट जैक वॉज नॉट रेडी, जैक इसके लिए तैयार नहीं था। क्यों? ही एक्सप्लेन्ड हर डॉटर, उसने अपनी लड़की को समझाया, और उसने क्या समझाया? दैट रोजर स्कंक लव्ड हिज मदर मोर देन एनी अदर टिनी एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट, एज वेल एज हिज मदर न्यू वेरी वेल व्हाट वाज राइट फॉर हर चिल्ड्रन और नॉट। जैक ने कहा कि रोजर स्कंक अपनी माँ को किसी दूसरे जानवर या अपने किसी दूसरे फ्रेंड से ज्यादा जो है वो मानता था, और साथ ही साथ रोजर स्कंक की माँ भी ये जानती थी कि उसके बच्चे के लिए क्या ठीक है क्या नहीं। एंड दैट इज द रीजन आई विल नॉट चेंज द स्टोरी, आई विल नॉट चेंज इट्स कॉन्सेप्ट, और यही रीजन है कि मैं इस स्टोरी के कॉन्सेप्ट को क्या करूंगा, बदलूंगा नहीं। So that was the summary of this chapter, Should Wizard Hit Mommy? And what moral issue does the story arise? The story arises the moral issue. Let's see once again. Should parents always decide what the children should do, or let the children do what they like to do? And one another thing, beta, there is a great difference between the perspective of young ones and adults, because young ones are free to think on any topic, but there is a great burden of responsibility and duty on the shoulders of adults. And that is the reason there was a great contrast between the thought of Jo and her father Jack. So this was the summary, and in next video we shall see another summary of your chapter. Till then, have a nice day.